Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Ram Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hey, Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare There's tears. He doesn't go anywhere. Yes, Sundar, people Sundar.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram,
Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare Ram जब हम हो सकता है दानी हो सकती है सबसे भगवान है नाम या विलास रही हरी हरी तो सर्व की बात है हरे कृष्ण हरे आगे भी है आगे का हो गए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare
हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। प्रभु श्री प्रभुपाद से भक्तों को मेरा सारा धन्यवाद प्रणाम है। तो आज हमारे बीच काफी लंबे समय बाद पुनः श्रीमान पार्थ सारथी प्रभु हमारे बीच उपस्थित है। आज का टॉक देने संभावना है कि प्रभु जी प्रभु श्री राम या उनके विशेष शुद्ध भक्त अनन्य भक्त हनुमान जी के विषय में कुछ सुनाएंगे। पिछले दिनों में हनुमान जयंती का महोत्सव भी आ रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम सबको विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। पार्थ सारथी प्रभु, मेरा इंटरनेट शायद अनस्टेबल हो सकता है, तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ प्रभु जी। सो इन केस इफ आई एम नॉट अवेलेबल यू मे एंड द सेशन प्रभु जी, है ना? यस जय प्रभु। ओवर टू यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी और बाकी वैष्णव को प्रणाम। विशेष करके पद्माली प्रभु जिन्होंने भी ये सेवा दी है। आज हम चर्चा करेंगे हनुमान जी के बारे में। विशेष करके शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कई दिनों के बाद हम मिल रहे हैं तो थोड़ी चर्चा करेंगे। आज का दिन बड़ा विशेष है, तो एक स्लाइड शो के द्वारा हम चर्चा करेंगे हनुमान जी के बारे में। लेकिन आज का जो दिन है बड़ा विशेष है। कैसे? तो आज बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण हमारे आचार्य हैं उनका आविर्भाव दिन भी है। देखिए, श्यामानंद श्री श्यामानंद पंडित, इनका आविर्भाव दिन है। श्री वंशीधर ठाकुर, इनका भी आविर्भाव दिन है। और विशेष करके श्री कृष्ण वसंत रास, जो पश्चिम बंगाल में बड़ी मात्रा में मनाया जाता है, ये रास यात्रा भगवान कृष्ण का, ये भी आज के दिन है, पूर्णिमा है। और श्री बलराम रास यात्रा, विशेष करके बलराम जी की भी रास यात्रा होती है, वो भी आज के दिन भगवान करते हैं, पूर्णिमा है आज। और विशेष करके हम वैष्णव के लिए बड़े वैष्णव, बड़े सेवक हैं हनुमान जी, तो उनका भी आज जन्मोत्सव है, जिसे हनुमान जयंती के नाम से कहा जाता है, माना जाता है। और आप लोग भी सुने होंगे, अभी सुनेंगे हनुमान जी के गीत, राम जी के गीत। आज के दिन अलग अलग हनुमान मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। तो हम, क्योंकि हम कई दिनों से भगवान श्री राम जी के बारे में हम जान रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से राम लीलाएं हुई है, तो संक्षिप्त में कुछ स्लाइड से यहाँ पर हैं। भगवान श्री राम, और जब जब भी हम लोग राम जी का नाम कहते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, सब लोग जोर से बोलिए। आपको म्यूट किया है, फिर भी राम जी का आवाज आना चाहिए, गूंज होनी चाहिए। और अगर राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी का भी नाम आता ही है, जय हनुमान। क्योंकि सबसे बड़े सेवक, दास्य भाव में जिनका नाम कहा जाता है हनुमान। जैसे कई गीत भी आपने सुने होंगे, दुनिया दुनिया चले न चले राम के बिना, राम जी चले न चले हनुमान के बिना। जैसे दुनिया तो चलती है, लेकिन बिना राम जी के वो नहीं, राम तो प्राण है। वैसे राम जी अगर चलना है, राम जी अगर कार्य करते, तो उसमें हनुमान चाहिए, हनुमान होते ही हैं। हनुमान जी के बिना राम जी कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से हनुमान जी, उनके बारे में जानना जरूरी है। और भगवान रामचंद्र जी, जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं, हमारे जो हरे कृष्ण मंत्र में भी 4 बार राम नाम आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम, राम राम हरे हरे। तो प्रभुपाद जी कई बार उनके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है, वही राम जी का अर्थ है श्री राम, परशुराम और बलराम। यही उन्होंने प्रभुपाद जी ने समझाया हुआ है। और राम जी ने अलग अलग लीलाएं की हैं, किस प्रकार से उन्होंने धनुष्य बाण तोड़ा, फिर सीता जी को प्राप्त किया, स्वयंवर हुआ, और स्वयंवर के पश्चात फिर तुरंत उनको आदेश मिला कि वन में जाइए। वन में गए तो वहां पर भी कई सारी लीलाएं हुई, केवट से मिले, शरयू माता को पार किया, गंगा जी को पार किया, और फिर पंचवटी में नासिक पहुंचे तो वहां रावण ने छल के साथ एक छद्म वेश, साधु के वेश में आकर सीता माता का हरण किया, और फिर शबरी माता का उद्धार किया, अहिल्या देवी का उद्धार किया। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने वनवास स्वीकार किया। ये लीला घटित हुई, क्यों हुई? भगवान को भी जंगल में जाना पड़ा, तपस्या हुई, भगवान ने की। क्यों? बाकी लोगों के लिए, सुग्रीव का उद्धार, वानव को सेवा में लगाना है, इसलिए भगवान ने ये लीला रचाई। और फिर भरत महाराज जी मिलने आए, उनको भी कहा, तो भगवान ने कहा नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन के पक्के भगवान है। उन्होंने दिखाया किस प्रकार से हमें वचनों का पालन करना है। दीक्षा भी हम वचन देते हैं ना गुरु को, तो उसका भी पालन करना बहुत आवश्यक है। वचन के पक्के भरत जी हैं, राम जी भी हैं। और फिर कैसे जटायु का उद्धार किया, ये लीलाएं हमने देखी, चर्चा की है पूरे सप्ताह। फिर बाद में जैसे रावण का वध किया, फिर सीता माता को स्वीकार करने के पूर्व अग्नि परीक्षा। कोई भी चीज हमें प्राप्त होती है तो बड़ी आसानी से नहीं, कुछ ना कुछ हमें तपस्या करनी पड़ती है। सीता माता को तपस्या करनी पड़ी, और लव कुश उनके पुत्र हुए, उन्होंने रामायण सुनाया। और जो भी हम चित्र देखते हैं भगवान श्री राम जी का, सीता, राम, लक्ष्मण, और साथ में होते हैं हनुमान। जैसे कहा जाता है राधा के बिना श्याम है आधा, तो वैसे हनुमान के बिना है राम है आधे। तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो हनुमान जी हर चित्र में होते ही है, हनुमान जी के बिना कोई कार्य पूर्ण होता नहीं है श्री राम जी का। और जब सीता माता की खोज की तो हनुमान जी की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने बड़ा योगदान किया, बड़े सेवक है हनुमान जी। उनको हम प्रार्थना करेंगे इस श्लोक के द्वारा, एक बार मेरे साथ ही दोहरा सकते हैं आप लोग। हनुमान जी को विशेष प्रार्थना है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं उस हनुमान जी की शरण में आता हूँ जो मन की गति से भी तेज है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, पवन पुत्र, वानरों के नेता और श्री राम के दूत हैं। श्रियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार हनुमान जी को प्रणाम करके हम शुरुआत करते हैं, और विशेष करके उनकी रुचि भी कीर्तन में होती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, तत्र कृतमस्तकांजलि, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतका। जहां जहां भी श्री राम जी की कीर्ति का गान होता है, वहां वहां भगवान हनुमान के हाथों को जोड़कर खड़े रहते हैं। वहां हनुमान जी खड़े होते हैं हाथों को जोड़कर, एक दास्य भाव में, नम्रता की भावना से। उनकी आंखों आंखों में प्रेम के आंसुओं से पूरी भरी होती है उनकी आंखें। मैं उस राक्षसों का नाश करने वाले हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ, जो मारुति नाम से भी जाने जाते हैं। तो हनुमान जी के कई नाम हैं, केसरी नंदन, अंजनेय, वायुपुत्र, रामदास, रामदूत, हनुमान, बजरंग बली। तो ऐसे नाम उनको अलग अलग लीला के कारण उनके कई सारे नाम आते हैं। इस एक ही चित्र में सब कुछ लीलाएं बताई गई हैं। तो जब हनुमान जी का जन्म हुआ, केसरी नंदन केसरी के पुत्र है, और अंजना माता उनके द्वारा उनका जन्म हुआ। और वायुपुत्र भी उनको कहा जाता है, विशेष शक्ति उनमें है। वायु जी के वायु देवता के अंश है माना जाता है उनको, वायुपुत्र भी कहा जाता है। और खास करके जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो बचपन से ही बड़े नटखट थे, बड़े शरारती थे, और बड़े शक्तिशाली थे हनुमान जी, साधारण नहीं थे। जब उनका जन्म हुआ तो जैसे बालक को हम देखते हैं कि भूख लगती है, बालक रोता है माता के बारे में, माता का स्तनपान करना चाहता है, भूख लगती है। तो जैसे हनुमान जी बचपन में हुआ, और थोड़ा सा कुछ समय के पश्चात जब थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ा रो रहे थे भूख के लिए, लेकिन माता को थोड़ा देरी हो गई, तो
तो उनको भूख लगी थी, उन्होंने फिर क्या, उन्होंने देखा कुछ भूख लगी, कुछ खाना चाहिए, तो आसपास जो भी दिखता है छोटा बालक मुंह में डालता है। तो उन्होंने, हनुमान जी ने देखा सामने कोई फल है। कौन सा फल है, जैसे पीछे आप देख रहे हैं बड़ा आम के जैसे। उनको लगा ये अच्छा आम है, पका हुआ आम है, सूरज। जब सुबह सुबह उन्होंने देखा कि सूरज उग रहा था, और उनको लगा आम है, तो हनुमान जी ने खुद ही लगाई और आम को पकड़ने के लिए। अब वायुपुत्र थे तो उनको शक्ति प्राप्त थी, हनुमान जी चले गए, और जब उन्होंने बहुत जोर से लगे सूरज की ओर छलांग लगाई, और बाद में सूरज को निगल लिया, खा लिया आम समझकर। जैसे ना पीला कलर का आम, केसरी आम है, अभी तो आम का मौसम ही है। जैसे हमें आम रस में रुचि होती है, नाम रस में नहीं, तो नाम रस में रुचि होनी चाहिए विशेष करके। तो यहाँ हनुमान जी ने कुछ दिन लगाई, आम को खा लिया, सूरज को जब निगल लिया, तो बाकी देवता देखने लगे अंधेरा हो गया है, कैसे क्या होगा। तो बाद में फिर इंद्रदेव, सब इंद्रदेव के पास गए, त्राहिमाम बचाइए, आप बड़े देवता हैं, हमारे प्रमुख हैं। तो इंद्र जी को लगा कौन है ये, किसी ने सूरज को निगल लिया, ये साधारण बालक नहीं है, कोई बहरूपिया है, कोई राक्षस है जो देवता के ऊपर आक्रमण करना चाहता है। तो इंद्र ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। और कई बार हम देखते हैं कैसा लीलाओं में इंद्र देवता ऐसी कुछ गलतियां करते हैं हमें सिखाने के लिए, कि हमें भी जब अगर हम कुछ पद पर हैं, कई व्यवस्था पर हैं, या फिर हमें कुछ प्राप्त है प्रमुख सेवाएं, तो उसमें गलती ना करनी चाहिए, यही हमें इंद्र सिखाते हैं। और इंद्र जी ने फिर क्या किया, इंद्र देवता ने कुछ बिना कुछ सोचे हुए, ज्यादा सोचा नहीं, अपने वज्र का प्रहार किया हनुमान के ऊपर, और हनुमान को वज्र लग गया यहाँ पर। हनुवटी है ना जैसे, चिन्ह, चिन्ह के ऊपर लग गया वज्र, और उन्होंने फिर नीचे गिर गया, और गिरते समय सूरज को छोड़ दिया, और जैसे सूरज वापस आ गया उनके मुख से, और सूरज देवता बाकी पूरी जगह पर प्रकाश हुआ, सब देवताएं बच गए। लेकिन हनुमान जी को जो वज्र लगा, तो हनुमान जी नीचे गिर गए, बेसुध हो गए जमीन पर। ये देखकर उनके पिता कृष्णनंदन बड़े क्रोधित हुए, और फिर वायु देवता क्रोधित हुए कि छोटे से बालक के ऊपर आपने वज्र का प्रहार किया है, ये अच्छी बात नहीं है। तो वायु देवता ने क्या किया, सब कुछ वायु को रोक दिया, सबकी सांसें मैं रोक देता हूँ सबके, और वायु देवता ने सब वायु सब अपने आप को ले लिया, रोक दिया। बाकी देवता का दम घुटने के कारण कई सारे लोग मरने लगे, प्राणी पशु पक्षी हाहाकार हुआ सब जगह पर, और सब इंद्र के पास गए, बचाओ ऐसे आपने क्यों किया। देखिए कठिनाई, एक कठिनाई के बाद दूसरी कठिनाई आती है। तो पहले सूरज प्रकट नहीं, फिर चले गए थे, उनको निगल लिया गया, अभी वायु कम हो गए। उन्होंने कहा कि किसने वायु को रोका है, फिर इंद्र जी ने कहा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपने छोटे बालक मेरे पुत्र के ऊपर क्यों आक्रमण किया, वो भी वज्र से। छोटे से बालक के ऊपर वज्र का प्रहार करना अच्छी बात नहीं है। तो उनको समझाया, फिर उन्होंने कहा ठीक है, समझाते हैं ये साधारण बालक नहीं है। तो उनका फिर नाम पड़ा वज्र अंगी। फिर इंद्र जी ने आशीर्वाद दिया कि ये बालक तुम्हें वज्र लगा है, लेकिन तुम्हारा अंग जो है वज्र के समान होगा, किसी वज्र का भी प्रहार तुम्हारे ऊपर कभी इसके आगे नहीं होगा, ऐसे आशीर्वचन दिया, आशीर्वाद दिया। देखिए जैसे हम कहते कई बार, कभी शाप भी बना वरदान। जैसे परीक्षित महाराज को शाप मिला, लेकिन उसका वरदान, सबको वो वरदान साबित हुआ। भक्ति में जो भी कार्य होता है उससे हमें सीखना है पॉजिटिविटी। जो भी नकारात्मक कुछ होगा, कुछ चीजें कठिनाई आएगी, तो कोई भी चैलेंज होगा, चैलेंज का रूपांतर हमें चेंजेस करना है, उसे चैलेंज पर स्वीकार करना है, चॉइसेस है ना, चैलेंजेस चेंजेस इनटू चॉइसेस। तो चैलेंज को हमें चेंज करना है, चॉइस एक हमारे लिए पर्याय प्राप्त होता है, हमें और एक मौका मिलता है। तो यहाँ पर हनुमान जी को वज्र लगा, लेकिन उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि तुम्हारा अंग वज्र अंग होगा, तुम्हारा नाम होगा बजरंगी। बजरंग बली की जय। और हनु को, चिन्ह को मार लगा है, इसलिए उनका नाम हुआ हनुमार, हनुमान। जय हनुमान, जय श्री राम। इस प्रकार के उनके अलग अलग नाम हैं। वैसे हनुमान जी बड़े हो गए, हम देखते हैं कि वानर, वानर का होता है वानर, विशेष प्रकार के नर, साधारण नर नहीं है, और ये वन में रहने वाले नर, ऐसे वानर कहा जाता है। और हमेशा वो दास्य भाव में थे, क्योंकि वानर का एक प्रजाति है, वो कहाँ रहते थे, किम करो, जैसे किम पुरुष वर्ष, जम्बू द्वीप में, जैसे हम सुनते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे मेरु भी, तो जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। थोड़ा विषय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 9 वर्ष अलग अलग वर्ष है, इलाव्रत वर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्राश्व वर्ष, रम्याक वर्ष, हिरण्मय वर्ष, कुरु वर्ष, हरिवर्ष, भारत वर्ष, और आखिरी का है किम पुरुष वर्ष।
ये सब वानर है विशेष शक्तिशाली प्रजाति के। वहां पर ये थे किम पुरुष वर्ष, वहां के रहने वाले थे हिमालय से आगे, और वहां उनको विशेष शक्ति प्राप्त होती थी। कभी जैसे हम लोग कहते हैं नरसिम्हा, तो उनका सर अलग प्राणी का या फिर शरीर अलग, तो इस कर ऐसे करके इनका जो शरीर मतलब मुख था बंदर जैसे था, और शरीर नर जैसे था, और कई सारी शक्तियां उनमें होती हैं। तो बंदर और वानर में विशेष अंतर होता है। बंदर को पूंछ होती है, वानर को कभी कभी पूंछ नहीं होती है, और वो शक्तिशाली अपना रूप बदल सकते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, हम कहते हैं उनको अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती है। उस प्रकार वो किम पुरुष वर्ष, उनका नाम क्यों पड़ा? वहां पर सब लोग सेवा के लिए तैयार होते थे। किम करोती, क्या सेवा करो, कैसे करो, भगवान की सेवा के लिए तत्पर होते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा किम करोति, किमकर। किंकर मतलब दास। और वहां से वो हनुमान जी, वहां से वानर सब शक्तिशाली आए। और हम देखते हैं फिर वहां इस प्रकार से सप्त चिरंजीव, सप्त चिरंजीव हैं, उनमें से हनुमान जी भी एक हैं। तो एक श्लोक में आता है, सब श्लोक में आता है, वहां पर कहा गया है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविता। तो उनमें से है अश्वत्थामा, बलि महाराज, व्यासदेव जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी है। तो उनमें से हनुमान जी का भी एक नाम है। और हम कहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहाँ है? चैतन्य चरितामृत में आता है, आदि लीला 7वां अध्याय 23वां श्लोक, पात्र अपात्र विचार नहीं, स्थान नहीं, ये यहाँ पाया तहाँ करे प्रेम दान। जब भगवान के प्रेम को बांटते समय चैतन्य महाप्रभु और उनके सहयोगी ने इस बात पर विचार नहीं किया कि कौन योग्य है और कौन नहीं, और नहीं इस बात पर कि ऐसा वितरण कहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। जहां भी उन्हें अवसर मिला, पंचतत्व ने सदस्यों ने भगवान के प्रेम को बांट दिया। उन्हें कुछ देखा नहीं, ये पशु है, पंछी है, पुरुष है, स्त्री है, छोटे बालक है, जिनको देखा, पात्रा पात्र न देखी, स्थावर जंगम ना देखी, सबको कृष्ण प्रेम दे दिया। और हम देखते हैं कि भक्ति में हर कोई भक्ति में सहयोग दे सकता है, सेवा कर सकता है। किस रूप में है, कोई कास्ट, क्रीड, कलर, जाति पाति, रंग भेद, वर्ण हम कभी देखते नहीं है, कौन से देश का है। जैसे जटायु है, वानर है, गरुड़ है, गजेंद्र है, गिलहरी है, काक भूषणी है, कौवा है, जामवान भालू है, अनंत शेष एक सांप है, कालिया भी सांप है, मोर, गाय, नंदी, कोई प्राणी, पशु, पक्षी, हर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। वानर है, बंदर है, तो भगवान ने सबको सेवा में लगाया। ये हमें सीखना चाहिए। देखिए, अगर थोड़ा सा विषय अलग है, लेकिन अगर हम देखते हैं, अगर पत्थर भी है तो वो काम में आता है, नारियल फोड़ने के लिए, या आम को तोड़ने के लिए, या कुछ चीजें है ना, कील लगाने के लिए, हर कोई वस्तु व्यक्ति का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सर्वे विधि निषेध एता एव किंकर एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश। तो हमारा मन भक्ति में लगना चाहिए, जप में लगना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए, श्रवण में लगना चाहिए। यही उद्देश्य होता है। और भगवान ने क्या किया? भगवान रामचंद्र जी ने दिखाया कि यह जीरो बजट आर्मी, भगवान की सेना वानर को सेवा में लगाया, जिनके लिए देखिए कुछ जरूरत नहीं, जैसे आर्मी के लिए लगता है, खाना लगता है, भोजन, रहने की व्यवस्था, कपड़े, कितनी सारी चीजें हैं ना, अलग अलग विमान, शस्त्र अस्त्र। लेकिन भगवान ने सिखाया है, ये न के मतलब भगवान ने लगा जो भी चीजें हैं युक्त वैराग्य, हर कोई चीज सेवा में लगाओ, सेवा में एंगेज करो। तो भगवान ने वानरों को सेवा में लगाया, जिसे कई सारे हमारे वैष्णव कहते हैं जीरो बजट आर्मी। देखिए, खाना खाने के लिए अलग पाकशाला, किचन की व्यवस्था नहीं है, पकवान की व्यवस्था नहीं है। क्या है? केवल उन्होंने देखो फल फूल खाते हैं, कंद मूल खाते हैं। इस प्रकार से हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर आचार्य भी कहते हैं कि देखिए, उनको कपड़े वस्त्र की व्यवस्था आवश्यकता नहीं है, क्यों? बंधन उनके बाल ही शरीर के वस्त्र के रूप में है। शस्त्र की आवश्यकता नहीं। उन्होंने रावण से लड़ाई कैसे की? कैसे लड़ाई की? कई बार अपने दांतों से, नाखून से, और कई बार तो पत्थर से, या फिर पेड़ की टहनियों से लड़ाई की। कितना आसान! देखो, शस्त्र आवश्यकता नहीं। आजकल शस्त्र अस्त्र कितना सारा
मार्केट चल रहा है। तो हम देखते हैं, कुछ शस्त्र अस्त्र रहने की व्यवस्था नहीं, प्रसाद कुछ व्यवस्था नहीं है, सब कुछ फल फूल खा लो। और कहाँ रहो, रहने की अलग व्यवस्था नहीं, बस पेड़ पे रहो। गुफाएं हैं, कंदर है, किष्किंधा नगरी आपने देखी होगी। इस प्रकार से भगवान ने सिखाया है कि लेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टेक्निक भी सीखते हैं, कई सारी चीजें हैं, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। तो हनुमान जी इस प्रकार से, भगवान है, हनुमान जी एक वानर है, कई सारे जामवान भालू हैं, सबको सेवा में लगाया। और खास करके हनुमान जी कई सारी लीलाएं भी हैं। हनुमान जी जब बचपन में छोटे शरारती थे, उस समय कई सारे ऋषि मुनि के आश्रम में जाते थे, वहां पर वो फल फूल खाते थे, आश्रम को तहस नहस करते थे एक दूसरे वानरों के साथ। तो फिर एक बार एक ऋषि के आश्रम में उन्होंने ऐसे कुछ मस्ती की, कई सारी चीजें तोड़ दी, ऋषि मुनि नाराज हो गए। हम देखते थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, "छः, हनुमान जी तुम्हारी शक्ति तुम खो दोगे तुम।" और फिर उन्होंने ऐसे उनको श्राप दे दिया कि तुम हनुमान हो, बजरंगबली हो, अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, तुम्हारी शक्ति खो देगे, लेकिन जब तुम्हें कोई याद, फिर बाद में हनुमान किसी ने, फिर हनुमान जी ने प्रार्थना की क्षमा कर दो। उनके पास गए केसरी नंदन, उन्होंने कहा नहीं नहीं, छोटा बालक है, माफ कर दीजिए। उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया कि हाँ, जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तब तुम्हें वापस याद आएगी। और उनको कहा गया कि मैं कैसे सेवा करूंगा, आगे कैसे बढ़ूंगा। तो तुम्हें राम जी की सेवा करनी है, राम जी के बड़े सेवक तुम कहलाओगे। और जो तुम्हें पहचान लेगा, तुम्हारी पहचान तुरंत जिनको जान सकेगा और तुम्हें हनुमान के नाम से पुकारेगा, वही भगवान राम होंगे। फिर जैसे हनुमान जी बड़े हो गए, हनुमान जी अपनी सेवा करते थे किष्किंधा नगरी में, हम्पी परिसर में, हॉस्पिटल है ना, कर्नाटक में आता है। हाँ, वहां पर सेवा करने लगे। और फिर राम जी ऐसे करते करते सीता माता का हरण हुआ, पंचवटी के आगे फिर निकल गए। सीता माता, फिर जटा ने कहा कि दक्षिण की ओर गया है वो राक्षस, सीता माता को लेकर। और फिर लक्ष्मण को पूछा गया, आप जानते हो क्या? फिर उन्होंने देखा दागे ना, जो भी भगवान गहने देखे। लक्ष्मण जी ने कहा, ना हम जानाति केयूरे, मैं केवल पैंजन सीता माता के जानता हूँ, मैं गले का हार मुझे पता नहीं है, बाजूबंद पता नहीं है। क्यों? मैं चरणों को केवल हर दिन स्मरण करता था, देखता था। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, आगे देखते। फिर आगे ऐसे गए, और जाते समय वहां पर कबंध का वध किया, राक्षस, अलग अलग राक्षस का वध किया। और फिर जाते समय वहां पर कुछ वानर मिले, और हनुमान जी ने क्या किया, अपने आप को भेष बदल कर एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहां पे सामने आए। और राम जी ने उनको पहचाना नहीं। तो हनुमान जी ने कहा फिर, मैं कौन हूँ, मुझे समझ गया। ऐसे ही मजाक करते थे, जैसे हनुमान जी थोड़ा सा उनका नटखट शरारती स्वभाव था। और फिर राम जी ने तुरंत कहा, हनुमान तुम हनुमान ही हो। उन्होंने कहा मुझे पहचान लिया। तो उनको लगा कि यही शायद श्री राम है, जिससे मुझे एक ऋषि मुनि ने कहा था। उनको एक एक चीज याद आ रही थी। हाँ, आप ही श्री राम हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं ही श्री राम हूँ। तो आप वन रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सीता माता की खोज में। तो उन्होंने कहा हाँ, आपको मदद करने के लिए हमारे नेता हैं, हमारे प्रमुख सेनापति है, वो है सुग्रीव, उनसे मिलेंगे। जब सुग्रीव जी से मिले, वहां पर हनुमान जी ने कहा बैठो, अपने कंधे पर दोनों को बिठाया। और वहां किष्किंधा नगरी पत्थरों के ऊपर सुग्रीव जी से मिलने गए। और फिर वहां चर्चा की सुग्रीव जी ने, हनुमान जी ने। सुग्रीव भी दुखी थे कि उनकी पत्नी का हरण किया था बाली ने। और राम जी दुखी थे, उनकी पत्नी को लेकर गए थे रावण जी, रावण, रावण जी नहीं कहेंगे, रावण कहेंगे, बुरी बातें हैं। तो रावण उनकी पत्नी को लेके गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन सुग्रीव जी ने कहा पहले मेरी पत्नी को वापस लाओ बाली से। फिर भगवान ने बाली से युद्ध किया, उनको हराया, उनका वध किया, उनके पुत्र अंगद को स्थापित कर दिया नेता के ऊपर। और फिर वहां के जो सचिव थे, हनुमान जी, वहां प्रमुख मंत्री थे सुग्रीव के दरबार में। और उन्होंने कहा ठीक है हनुमान जी, हम सेवा करेंगे। फिर कहाँ गए? लंका। फिर सबने, सुग्रीव ने कहा, सबको भेज दिया, ढूंढ कर लेके आओ सीता माता कहाँ गई, चारों दिशा में। और ऐसे कहा जाता है, एक एक बार का ही चीज, एक एक वस्तु का नाम, कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, सब सुग्रीव ने बता दिया। जैसे जीपीएस हम देखते हैं ना कई बार, सुग्रीव को सब पता था, कहाँ पर क्या है, नदी नाले है, पत्थर है, सब ढूंढो। एक एक जानकारी अपने अपने सैनिकों को दी थी, उन्होंने वानरों को दी थी, ढूंढो और पता करो सीता माता कहाँ गई। फिर बाद में पता चला कि सीता माता समुद्र पार करके लंका, श्रीलंका गई है। तो लंका पार कौन करेगा? तो लंका पार करने के लिए उन्होंने सोचा, फिर कौन करेगा? फिर जामवान ने, जामवान को पता था हनुमान जी में शक्ति है। अंगद जी ने कहा, देखिए कुछ ऐसे श्लोक हैं, चौपाइयाँ अलग अलग है, उसमें वर्णन सब कुछ किया गया है कि कौन जाएगा वहां पर, और कौन लंका जाकर समुद्र को कौन लागेगा 100 योजन। और फिर जामवान को कहा गया, आप बड़े हैं उम्र में,
आप देखिए, तो जामवन का नहीं नहीं, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, जब ही त्रिभुवन भय करारी तब मैं तरहु न भल भारी, मेरा अभी उम्र हो गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वामन अवतार के समय मैं जवान था, उस समय मैंने सेवा की है, लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लंका जा सकूं, वहां ढूंढ सकूं। इसके बाद उन्होंने कहा, अंगद बाली के पुत्र तरुण है, युवा है, अंगद पार कर सकते हुआ। अंगद ने कहा, अंगद ने खुद अपनी शक्ति पर शंका करते हुए, उनको पता चला था हमें अपनी शक्ति पता होनी चाहिए, कितनी हमें शक्ति है। अंगद ने सोचा, जाना, कहा कि मैं लंका जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकूंगा, इस पर मुझे संदेह है। फिर बाद में अंगद के मना करने के बाद जामवन ने फिर हनुमान जी की ओर उंगली की, हनुमान जी, आप में वो शक्ति है, आप नटखट हो। और फिर राम जी ने भी कहा, हाँ ये हनुमान जी नटखट है, शरारती है, विचित्र है, थोड़ा सा बातें अलग अलग करता है, बड़ा बुद्धिमान भी है, लेकिन तो ये काम कार्य कर सकता है। फिर हनुमान जी ने, मतलब जामवंत ने हनुमान जी को कहा, हनुमान हे बलवान सुनो, तुम चुप क्यों हो, तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान शक्ति तुम्हें है, विवेक तुम्हें है, विज्ञान की तुम खान हो। और ऐसा जब कहा तो हनुमान जी को पता चला, हाँ अपनी शक्ति को जान पाए। और ऐसे उन्होंने कहा कि इस संसार में कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो, और राम काज के लिए विश्राम तुम्हें नहीं है, तुम कार्य कर सकते हो, तुम्हारा अवतार ही इसलिए हुआ है। तो ये बात सुनते ही हनुमान जी को अपने आप याद आ गया। देखिए, एक लीडर कौन होता है, जामवन से हम सीख सकते हैं कि असली नेता या असली काउंसलर, असली गुरु या बड़े वही होते हैं जो दूसरों को आगे करते हैं, दूसरों की शक्ति जानकर उनकी शक्ति का उपयोग करते सेवा में लगाते हैं। तो जामवन ने हनुमान जी को लगाया। फिर हनुमान जी आत्मविश्वास के साथ भरकर बोले, हाँ मैं एक छलांग में समुद्र को लांग सकता हूँ, और लंका को उजाड़ भी सकता हूँ, और रावण सहित सब राक्षसों को मारकर मैं वापस लेके आऊंगा। लेकिन वन ने कहा, इतना नहीं करना है, पहले आप जाओ ढूंढ कर लेके आओ। तो हनुमान जी ज्यादा उत्तेजित होते थे, शक्ति का प्रयोग करते थे। फिर हनुमान जी ने क्या कहा, जाना, और हनुमान जी ने अपने शरीर को, तुरंत उनको शक्ति प्राप्त हुई, अपने शक्ति को जाना, उनको सब ऋषियों का आशीर्वाद याद आ गया, और हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ा दिया, और उनका आशीर्वाद भगवान राम से प्रणाम किया। और फिर महेंद्रगिरी पर्वत, क्योंकि अगर खुदी लगानी है तो नीचे बेसमेंट जो भी है, आधार भी बड़ा पक्का होना चाहिए। तो महेंद्रगिरी पर्वत पर वहां गए, वहां से उन्होंने छलांग लगाई और जोर से कहा, जय श्री राम। जय श्री राम करते ही खुदी लगाई। राम काज में कहाँ विश्राम, तो मैं भगवान के काज में, कार्य में विश्राम कहाँ करूंगा, तुरंत जाता हूँ लंका से संदेश आता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जाओगे वहां पर, लेकिन कुछ आपको कैसे पहचानेंगे सीता माता, तो मैं ढूंढ निकालूंगा। फिर राम जी ने उनको अंगूठी दी, ये अंगूठी आप ले लो, उनको सीता माता को दे दो, और वहां से खुदी लगा दी, और जोर से फिर गए। और जाने के पश्चात क्या क्या हुआ हम थोड़ा चर्चा करेंगे, इससे क्या सीखना है। बाकी सकल लीलाएं हैं, लेकिन एक लीला से हम सीखेंगे। वो गए लंका की ओर, खुदी लगाए, लेकिन समुंदर लांघने के पूर्व अलग अलग समस्या उनमें आई। जैसे हमारे भक्ति में भी जो भी बाधा आती है, उनसे हमें क्या सीखना है, यह हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। कुछ लेसन हम इतना देखेंगे आप, जैसे भक्ति के मार्ग में कई सारे बाधाएं आती हैं, तो उसी प्रकार से हमें हनुमान जी की ये जो उड्डान है, हनुमान राम जी का नाम लेकर आगे निकले, तो वहां से हनुमान जी को समुद्र पार करते समय जो रोकने के लिए कई सारे राक्षस आए, कई सारे बाधाएं आए, तो वैसे ही हमारे भक्ति में कई सारे बाधाएं आती हैं, तो उसको कैसे पार करना है, ये आज हम पहले सीखेंगे एक लीला से। जैसे हम देखते हैं कि बाधाएं तो भक्ति में आती है, लेकिन उसको पार करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और शिल प्रभुपाद जी ने भी हनुमान जी के जैसे ही छलांग लगाई समुंदर पार करते हुए, और सीता माता मतलब लक्ष्मी जो विदेशी लोगों ने ली थी, उनको वापस लाने के लिए प्रयास किया प्रभुपाद जी ने, और हनुमान जी के जैसे कार्य प्रभुपाद जी ने किया, समुंदर पार किया। कितने सारे बाधाएं प्रभुपाद जी को आई, 3 हार्ट अटैक आए, समस्याएं आई, लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, वहां जाकर भी समस्या आई, लेकिन उनके पास क्या था, नाम था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वैसे हनुमान जी भी राम का नाम लेकर निकल पड़े, और प्रभुपाद जी भी हरे कृष्ण मंत्र गुरु का आदेश लेकर निकल पड़े, लोगों को हरिनाम देने के लिए, कृपा दे बांटने के लिए। जो लोग भूल गए हैं, रावण के जैसे लोगों की मानसिकता वो दूर करने के लिए प्रभुपाद जी
उनके पास गए और सीता माता या उनके आत्मा को, सीता माता को या फिर उनकी लक्ष्मी को सेवा में लगाने के लिए प्रभुपाद जी ने वही कार्य किया है। ये तुलना हम लोग कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के जीवन में बाधाएं आई, कई सारे समस्याएं आई, उनको पार किया प्रभुपाद जी ने और विजयी हुए। वैसे हनुमान जी को भी कई सारे बाधाएं आई। हमारे भक्ति में भी नाम जब जो करता है उनके भी जीवन में बाधाएं आती हैं। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, अलग अलग घन तरल, अलग अलग विचार आते हैं। षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो ऐसे उनकी तुलना की गई यहाँ पर कि हमारे जीवन में बाधाएं आती है। तो सबसे पहले हनुमान जी ने जब छलांग लगाई, हमारा हनुमान जी उड़ रहे थे, सर्वप्रथम आया वहां पर मैनाक पर्वत। एक पर्वत पर्वत ऊपर उठा, वो पर्वत आ रहा था, बड़ा सुंदर पर्वत था। वहां पे अच्छा हरियाली थी, घास थी, फल थे, फूल थे। और उस पर्वत ने कहा, हे हनुमान जी, यहाँ पर विश्राम करो। तो हनुमान जी ने कहा, राम के कार्य में विश्राम नहीं। आपको राम चाहिए या आराम चाहिए? क्या चाहिए हमें? राम चाहिए तो आराम नहीं मिलेगा, आराम चाहिए तो राम नहीं मिलेगी। राम के नाम में ही आराम है, आनंद है, शांति है, सुख है, समाधान है। और पर्वत हनुमान जी ने कहा, नहीं, मेरे उद्देश्य के लिए मुझे आगे बढ़ना है। तो अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले हमें आराम पाने का प्रलोभन मिलता है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, कई सारी चीजें मिलती हैं। उनके ऊपर हमें आकर्षित नहीं होना है, हमें कृष्ण के प्रति आकर्षित होना है। वही हमारा उद्देश्य है। तो सोने का पर्वत आया था, उन्होंने कहा, अचानक ऐसे पर्वत क्यों आया? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे रुकना नहीं है, ये प्रलोभन है, राम के कार्य में विश्राम नहीं है, आगे बढ़ना है। आगे चल पड़े। तो दूसरे आई सूरसा, उसे कहा जाता है छाया ग्रहणी। तो सूरसा, हनुमान जी प्रयास कर रहे थे उड़ने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। क्यों? उसने छाया, हनुमान जी की छाया जो पानी के ऊपर रहती, पकड़ लिया था, छाया ग्रहणी राक्षस। और उसको पकड़कर हनुमान जी कहा, कैसे होगा, क्या होगा? और फिर कहा कि कोई राक्षस ही है। फिर हनुमान नीचे आ गए, जैसे ही तो छाया तो ग्रहणी क्या किया, उन्होंने बड़ी हो रही थी। जैसे कहा गया है सूरसा मतलब, तो वो उसने क्या किया, हनुमान जी, तुम हे बंदर, हे वानर, यहाँ से प्रयास आगे नहीं जा सकते हो, प्रयाण नहीं कर सकते हो। मुझे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, जो कोई भी आएगा मेरे मुंह में प्रवेश करेगा, और मुझे भूख लगे, मेरे मुंह में प्रवेश करो वानर। तो जैसे उन्होंने कहा, ठीक है, तूने अपना मुंह बढ़ा दिया सूरसा ने। फिर हनुमान जी ने कहा, हनुमान भी बड़े हो गए। तो उसने और 10 योजन बढ़ाया, हनुमान जी ने 10 योजन अपने आप को बढ़ा दिया। उन्हें शक्ति प्राप्त थी, सिद्धि प्राप्त थी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सब सिद्धियां उनमें थी। तो उन्होंने और 20 योजन, 40 योजन ऐसे बढ़ा रही थी अपना अपना मुख, अपना स्वरूप। हनुमान जी बढ़ा रहे थे। लेकिन अचानक जैसे वो और 70 योजन, 80 योजन और बढ़ा रही थी, हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया और तुरंत उसमें के मुख में प्रवेश करके वापस आ गए। कहा कि देखो, तुम्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वचन प्राप्त हुआ था कि मेरे मुख में प्रवेश किए बिना कोई आगे नहीं जाएगा, तो मैंने प्रवेश कर लिया, वापस भी आ गया। और फिर जैसे कहा जाता है कि जो प्रवेश कर लिया, फिर बाद में जैसे इसे तुलना की गई है हमारा अहंकार, सुरसा। सुरसा मतलब कौन? रस, इंटरेस्ट, रुचि। तो कई बार हमारी रुचि बदल जाती है, हमारा कई बार हमारा जो अहंकार हमें अच्छा लगता है, और अहंकार बड़ा बड़ा होता है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। जैसे वो मेंढक है ना, मेंढक कहता है एक बार कि आपने आ, किसी को देखा? तो छोटे बालक ने कहा, छोटे मेंढक के बच्चे ने कहा कि हाँ देखा है, समुद्र कितना बड़ा है। वो बोले, इतना बड़ा, इतना बड़ा। अपने आप को अहंकार जैसे बड़ा रहता, और बाद में वो मेंढक फूट गया, मर गया। तो अपना अहंकार कभी हमें मार देता है, या सुरसा, इंटरेस्ट, कभी कभी हमारा रुचि जो है भगवान के प्रति हटकर अपने अपने अहंकार के प्रति, मैं, और जो मैं करता है वो कट जाता है, बकरा है। मैं अहंकार, तो हनुमान जैसे अहंकार के लिए फिर उपाय क्या है? अहंकार जितना बड़ा बड़ा होता है, तो हमें क्या है, उतना छोटा हम बनेंगे, तो अहंकार को जीत सकते हैं, छोटी सेवाएं कर सकते हैं, नम्र सेवाएं, निम्न सेवाएं कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने अपने आप को तो बढ़ाया, और बाद में छोटा बनकर उनको फंसाया, तो वहां से छुटकारा प्राप्त किया। तो सूरसा जो छाया ग्रहणी, फिर उसने वहां पे छोड़ दिया, हनुमान जी आगे बढ़ो, आप बड़े शक्तिशाली हो। फिर बाद में ऐसे आगे बढ़ने के बाद उनको सिंहिका, सिंहिका नाम था उसका, उसे सर्प के रूप में वो सिंहिका आई, और सिंहिका ने क्या किया, हनुमान जी को निगल लिया। और निगलने के बाद हनुमान जी ने ग्रहण कर लिया। तो हनुमान जी फिर अंदर उसके पेट में गए, और हनुमान जी उनके छाती को फोड़कर वहां से बाहर निकल गए। तो सिंह का अर्थ है कि हमारा द्वेष,
जैसे कई बार देखिए ऊंचे पद पर बैठे लोगों ने ईर्ष्या करना, ईर्ष्या द्वेष कहीं हम प्रयास करते हैं तो ईर्ष्या क्या करती है, हमें निगल लेती है। हमारे मन की ईर्ष्या मन में होती है, हमारे हृदय में होती है, तो उसे कैसे निकालना है? भक्तिमय सेवा के द्वारा हमें सिमिका के हृदय को नष्ट करना है। हनुमान जी ने जोर से एक मुष्टि प्रहार किया और उसे छाती को छोड़कर, गदा से छाती को है ना फाड़ कर वहां से निकल गए। तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में, मन में जो ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, जो एनवी होती है, उसको निकालना है। कैसे निकालना है? हृदय को तोड़कर, मन की जो विचार है, काम जो बाकी चीजें, उनको फाड़ कर हमें सेवा के द्वारा, भक्तों का गुणगान के द्वारा उसे नष्ट करना है, हृदय से पूरा निकालना है। ये सांप है ना, सांप भी द्वेष करता है, तो उसी प्रकार हनुमान जी ने सिंहिका का वध कर दिया। फिर और आगे निकल गए और लंका में पहुंच गए। शाम को जब लंका में पहुंचे, लंका बड़ी सोने की थी, बड़ी सुंदर थी, और वहां पर उन्होंने प्रवेश किया, एक दीवार से छलांग लगाकर नीचे कूदे, और कूदने के बाद वहां लंकिनी नाम की राक्षसी से मिली। उन्हें कहा छोटा सा बालक, उसके लगा कोई बिल्ली आई, छोटा सा ये वानर है या बिल्ली है, वो कूदी है। उन्हें क्या, ए यहाँ पर क्यों आए रहा, तुम कोई बहुरूपी लगते हो। और उस लंकिनी ने क्या कहा, तुम चोर हो। हालांकि वो रावण सबसे बड़ा चोर है, उसने सीता माता को हरण कर लिया था, और उसकी सेवा करने वाली भी चोर थी ये और वो दूसरों को कह रही है, हनुमान जी को कह रही है, तुम चोर के समान कैसे आ गए। और फिर जैसे वो चौकीदार वहां पे थी राक्षस, ने कहा नहीं नहीं मुझे युद्ध करना पड़ेगा। और फिर बाद में उन्होंने हनुमान जी से युद्ध करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने युद्ध किया और जोर से अपने मुष्टि के साथ उसके सर पर प्रहार कर दिया, वहीं पर उसे परास्त कर दिया। और उस लंकिनी को पता था, बड़ी रावण की बच्ची सेविका थी, उनको पता था, उन्होंने सुना था कि जब भी कोई वानर आएगा तुम्हें परास्त करेगा तो समझ लेना लंका का नाश होगा। तो वही लंकिनी को समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अच्छा वानर है, वही जो भविष्यवाणी है वो सच में होगी। और फिर उन्होंने, लंकिनी ने कहा जाओ तुम, और फिर वहां हार गई और हनुमान जी आगे बढ़ गए। तो लंकिनी मतलब क्या है? उसे कहेंगे फाल्स प्रोपेगेंडा। या कहीं बाहर के लोग क्या कहते हैं, बाहर के जो कर्मी लोग होते हैं, अभक्त होते हैं, वो भक्तों को कहते हैं तुम कोई कार्य नहीं करते हो, भक्तों को ऊपर दोषारोपण करते हैं, भक्तों के ऊपर लांछन लगाते हैं। तो वो स्वयं चोर होते हैं, क्योंकि भगवान से सब कुछ प्राप्त करके भगवान को नहीं देते हैं। लेकिन वो हमें भक्तों को गलत धारणा करते, तुम कुछ कार्य नहीं करते हो, आलसी हो, परजीवी हो, पैरासाइट हो समाज के ऊपर। तो वो उनको समझ में आता है, वो हमारे ऊपर उनको, लेकिन सिद्धांत के द्वारा मुष्टि, कौन सी मुष्टि? ज्ञान की मुष्टि। उनको तत्व के द्वारा हमें परास्त करना है, क्योंकि वो इस भौतिक दुनिया को अपने आप को चौकीदार कहते हैं, लेकिन वो चोर है। क्योंकि भगवान, जैसे प्रभुपाद भी कहते हैं, कर्मी लोग जो है भगवान का ज्ञान, भगवान की सामग्री सब कुछ, सूर्य प्रकाश, पानी, जल, पृथ्वी सब कुछ लेकर भगवान को वापस नहीं करते, तो असली वही चोर है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये तत्व वो जानते नहीं, उनको हराना चाहिए, उनको पता, परास्त करना चाहिए, उनको समझाना है कि नहीं, वास्तविक आप ही भगवान से सब कुछ लेकर भगवान को नहीं दे रहे, तो असली चोर आप ही है। तो इस प्रकार लंकिनी को परास्त किया। तो हमें भी मिथ्या धारणाएं, सिद्धांत, कर्मी लोग, अज्ञानी लोग, अभक्त लोगों को ज्ञान के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा मुष्टि का प्रहार कर कर हराना है। तो ऐसे ये चीजें हम हनुमान जी सीख सकते हैं कि कैसे आराम नहीं, और हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, अपने अहंकार को नष्ट करना है, अपने द्वेष को नष्ट करना है, और दूसरों के सिद्धांत को हराना है, ज्ञान प्राप्त कर कर, कथाएं सुनकर। फिर बाद में ऐसे हनुमान जी पहुंचे, तो वहां पहुंचने के पास सीता माता के पास गए, और सीता माता ने जब सामने, जब जैसे प्रकट हुए, सीता माता को लगा कि ये कोई बहुरूपी है, रावण ही रूप बदल कर आया होगा, कोई राक्षस आया होगा, लेकिन मैं कैसे पहचानूं कि ये सेवक है। तो हनुमान जी को लगा कैसे बताऊं मैं माता को। तब हनुमान जी ने गुणगान करना शुरू कर दिया श्री राम जी का। वो दशरथ नंदन है, ऐसे कई सारे चौपाई में, कई सारे अलग अलग जगह वर्णन किया गया है श्लोक के द्वारा, कि राम जी वो दशरथ नंदन है, आपके प्रिय है, दश सब अयोध्या वासियों के प्राण हैं, ऐसे कार्य किया, वैसे कार्य, उनका गुणगान कर ले। सीता माता को लगा सच में राम जी का गुणगान कोई असुर राक्षस नहीं कर सकता है। तो असुरों के, अभक्तों के मुख में राम का नाम नहीं आता है। क्यों क्यों नहीं आता है? सर पर अगर पाप का बोझा है तो मुंह नहीं खुलता है। तो पाप का बोझा नष्ट हो जाता है, कम होता है, तो मुंह खुलता है।
तो हरे के यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिन्होंने भी सब यज्ञ दान पूजा पाठ किया है उनके मुख से ही नाम आता है। जय श्री राम। उसी प्रकार से नाम तो उनको पता था, फिर बाद में उन्होंने गुणगान किया, और तो सीता माता को पता था कि हाँ ये होंगे, कि आप क्यों मुझे आए, तो उन्होंने कहा कि मैं सीता माता मेरे कंधे पे बैठो, मैं आपको वापस श्री राम जी के पास पहुंचाता हूँ। सीता माता ने कहा नहीं, मैं पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती, और तुम्हें नहीं, मेरे राम जी यहाँ स्वयं आने चाहिए, और रावण का वध करके उनको परास्त कर कर लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर कर मुझे सबके समक्ष लेकर जाने चाहिए, तब मैं आऊंगी। देखो अपने वचनों की पक्की सीता माता, और अपना विश्वास, प्रामाणिकता, और उनके ऊपर उनमें सारे कई सारे गुण, साक्षात लक्ष्मी है। उन्होंने कहा नहीं, सीता माता ने कहा कि तुम कैसे हो। फिर बाद में हनुमान जी ने जब उनको अंगूठी दी, माता ये अंगूठी आप ले लीजिए, तो उनको जब अंगूठी देखी तो सीता माता रोने लगी, क्रंदन करने लगी राम जी के विरह में। तो उन्होंने देखा और फिर अंगूठी को याद किया, तो उन्होंने कहा सब चीजें उनको याद आ रही थी कि यह अंगूठी के कारण, इस अंगूठी ने फिर से हमें वापस जोड़ लिया था राम जी और मिलाया था। जैसे एक बार भगवान राम जी और सीता माता ऐसे ही अपने कक्ष में थे, तो राम जी ने क्या किया, अंगूठी ऐसे नीचे डाल दी और कहा मेरी अंगूठी कहाँ है, कहाँ है, ऐसे कह उनको कह रहे थे। सीता माता ने कहा यही तो है, ढूंढ कर निकाला, और अंगूठी ने उनको वापस मिलाया। उनको याद आया, सीता माता हर ऐसी लीलाएं राम जी के बारे में याद कर रही थी, और कहा कि यार राम जी को बताओ, मेरा संदेशा दो। फिर हनुमान जी ने कहा कि ठीक है माता, मैं जाऊंगा वापस, राम जी को कहूंगा जल्द से जल्द जितना होगा तुरंत उनको लेकर आऊंगा, और रावण को हराएंगे और आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा करेंगे, आपको छुड़ाएंगे यहाँ से। फिर हनुमान ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे जाने के लिए कुछ दीजिए। सीता माता ने कहा ठीक है, मेरा चूड़ामणि, चूड़ामणि जो है उनको दिया, ये राम जी को दीजिए। कुछ है ना, जैसे होता है जब भी हम कुछ सेवा करते हैं तो कोई प्रूफ चाहिए, क्या किया कि नहीं, या रिपोर्टिंग चाहिए, या है ना रिसीव्ड, ऐसे पत्र चाहिए। उसी प्रकार से उन्होंने लेकर गए, और जाते समय कहा कि थोड़ा सा मैं सेवा करके फल फूल खाता हूँ। हनुमान जी का स्वभाव है। फिर हनुमान जी ने वहां तहस नहस लंका को कर दिया, फल फूल खाए, पेड़ गिरा दिए। ऐसे करते करते फिर रावण के राक्षस आए, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे वीर, ये कौन है वानर, और ये वानर क्या कार्य कर रहा है। तो उन्होंने पकड़ लिया हनुमान जी को, और पकड़ लिया तो फिर किसी ने कहा कि इनको मार देते हैं, मार डालो। तो विभीषण ने रावण को कहा नहीं, एक वानर है, प्राणी है, ये कोई शत्रु नहीं है, इनको हमें नहीं मारना चाहिए। उनको पता था ये रामदूत है। उन्होंने कहा मार नहीं मारना चाहिए, तो क्या करना है, उनकी पूछ जलाना मतलब मारने के बराबर है। उन्होंने कहा ठीक है, इनकी पूछ जला दो। फिर हनुमान जी कहा पूल को, मेरी पूछ को रॉकेल या ऐसे कुछ चीजें मत डालो, घी डालो, और पूछ को बढ़ाया। ऐसे करते करते पूरा लंका का घी उन्होंने समाप्त कर दिया। उनका बड़ा नुकसान किया, पहले फल फूल पेड़ पौधे नष्ट किए, और वहां का सब घी खत्म कर दिया। उन्होंने पूछ को जला दिया। हनुमान ने फिर जाते समय क्या किया, हर जगह लंका को जला दिया, और उन्हें तब बताया हे रावण, एक छोटे से राम जी के सेवक में, वानर में इतनी शक्ति है, हमारे पास तो वानर सेना है, तुम्हारा क्या हाल करेगी, अभी सुधर जाओ, समझ लो। लेकिन रावण ने नहीं, तुम्हारा वध करता हूं, उनके पीछे लग गए। हनुमान ने फिर ऐसे कूदी लगाई, और रावण को परास्त वहां पे किया, सब राक्षसों का, कई सारे हजारों राक्षसों का वध किया। बाद में अपने पूंछ को मिटाकर वापस वहां से छलांग लगाई, जय श्री राम, और पहुंच गए राम जी के पास। और राम जी के समक्ष पहुंचे, तो राम जी ने कहा गए आप, तो उन्होंने कहा ये चूड़ामणि। और फिर राम जी को याद है सीता माता की, और वो स्मरण करते थे, और हनुमान जी आपने तो बहुत बड़ा कार्य किया है, मैं आपको क्या दूं। अब मैं अयोध्या में होता तो आपको राजपाट, आभूषण, कई सारी चीजें देता आपको मैं, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या दूं मैं। तो राम जी ने सोचा आलिंगन देते। फिर राम जी ने गले लगाया, और हनुमान जी ऐसे ही खड़े थे। भगवान, पूरे त्रिलोक का सामर्थ्य मुझे में, ऐश्वर्य मुझे इससे बड़ी है, आपकी जो आलिंगन है ये मुझे मिल गया, बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए, रो रहे थे, और कहते और सेवा के लिए उत्साहित हो गए। देखिए थोड़ा संक्षिप्त बताता हूँ क्या सीखना है। राम जी की सेवा मिली तो पूछ जली, है ना, वहां पे तकलीफ हुई, समस्या हुई, लेकिन जब सीता माता की सेवा मिली तो गला मिले, है ना, गले मिले, एम्ब्रेस। जब राम जी की सेवा में स्ट्रेस आया, पूछ जलने का, और सीता माता की सेवा में एम्ब्रेस, आलिंगन मिला। तो हम देखते हैं भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करेंगे तो समस्या हो सकती है, कठिनाई आएगी, लेकिन भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों की सेवा करेंगे, सीता माता की सेवा करेंगे तो हमें आलिंगन,
भगवान का संपर्क, भगवान की कृपा मिलेगी। तो इस प्रकार के हमें भगवान के भक्तों का दास 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 अनुदास बनने का प्रयास करना चाहिए। सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। प्रभुपाद जी कहते कितनी बार? 100 बार। तो हनुमान जी ने सिखाया दास्य भाव किस प्रकार से करना चाहिए। कई सारी लीलाएं हैं हनुमान जी की, अलग अलग मधुर मधुर लीलाएं हैं, फिर कभी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हनुमान ने सिखाया है दास्य भाव कैसे दास बनकर भी सेवा कर सकते हैं। अपने बुद्धि का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग, हर कोई वस्तु का प्रयोग हनुमान जी ने सिखाया। और नाम का प्रभाव कैसे हुआ है सब? जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हनुमान जन्मोत्सव महोत्सव की जय, चल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। यहाँ पर हम विराम देते हैं क्योंकि अगले कार्य में समय पर समाप्त करना जरूरी है। तो कोई प्रश्न होगा तो फिर कभी पूछ लीजिए आप। फिर कभी हम मिलेंगे। कई सारी लीलाएं हैं। हाँ, वो डायरी के बारे में है, वीणा के बारे में है, मोतियों का हार है, जाम्बाई है, सिंदूर है, पत्थर का डूबना, ऐसी कई सारी लीलाएं हैं। 1-2 घंटा हम और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगला कार्यक्रम भी है, कई सारी चीजें भी हैं। धन्यवाद। हनुमान जी से वही चाहते, वही प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी के जैसे सेवा भाव हम में आए। सेवा में अपनी शक्ति लगाने की जो हमें सिखाया हनुमान जी ने, हमें प्रयास करना चाहिए। पूरी शक्ति के साथ हमें प्रयास करना है। राम जी की सेवा है, भगवान की सेवा है। और जो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, समुन्दर को लांग कर, हाँ, लोगों को राम का नाम दिया। राम का संदेश हनुमान जी ने सीता माता को दिया। प्रभुपाद जी भी भगवान का संदेश, भगवत गीता देने के लिए वहां पर गए और उन लोगों को वापस राम जी के पास लाया। जो जीव है भटक रहे थे, रावण ने हर लिया है विदेशों में, देशों में, अलग अलग प्रांतों में, पाश्चात्य देशतारी ने, वैसे ही प्रभुपाद जी ने उन लोगों को छुड़ाकर उस माया के दरबार में, रावण जैसी माया के, और वापस लाकर भगवान राम जी के चरणों में, गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में वापस लाया। ऐसे प्रभुपाद जी भी हैं, हनुमान जी के जैसे ही सेवा करते हैं। गुरु का कार्य वैसे ही होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत धन्यवाद पद्माली प्रभु जी का, और आप सब भक्तों का भी। हरे कृष्णा। ठीक है, विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, आनंद में राधा माता जी हम रुक जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण।